हाय गाइस। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बैरक लेक्चर सीरीज में हम लोग आज स्टडी करते हैं सेक्शन 144 से लेके सेक्शन 158 तक। तो आइए देखा जाए सेक्शन 144 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। 144 बात करता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन अर्थात प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। The where and insofar as decree or an order is varied or reversed in any appeal, revision, or other processing is set aside or modified in any suit instituted for the purpose of the court which passed the decree or order shall, on application of any party, entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made as will so far as may be placed the party in position which they would have occupied but such decree or order or such part thereof as he have been or he has been varied, reversed, set aside, or modified, and for this purpose, the court may make an order including orders for the refund of cost and for the payment of interest, damages, compensation, and means profit which are properly consequential on such variation, reversal, setting aside, और मॉडिफिकेशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर अर्थात जहाँ की और जहाँ तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उल्टा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपांतरित किया जाए, वहाँ और वहाँ तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार जहाँ तक हो सके उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते यदि डिक्री या आदेश उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उल्टा गया है या पास्त किया गया है या रूपांतरित किया गया है न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अंतर्गत खर्चे के प्रतिदाय के लिए कोई ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अंतःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश को ऐसे फेरफार करने, उलटने, अपास्त करने या उपांतरण करने के लिए उचित रूप में परिणामिक है। एक्सप्लेनेशन बात करता है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ सबसेक्शन 1 द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड where the decree or order has been varied or reversed in exercise of appellate or revisional jurisdiction, the court of first instance. Where the decree or order has been set aside by a separate suit, the court of the first instance which passed such decree or order. Where the court of the first instance has ceased to exist or has ceased to have jurisdiction to execute it, the court which, if the suit where the decree or order was passed, were instituted at the time of making the application for restitution under this section, would have jurisdiction to try such suit. And subsection 2 बात करता है कि no suit shall be instituted for the purpose of obtaining any restitution or other relief which could be obtained by the applicant under subsection 1. अर्थात कोई भी वाद ऐसा प्रत्यास्थापन या अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जाएगा जो उपधारा 1 के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है। सेक्शन 145 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटीज
where any person has furnished security or given a guarantee for the performance of any decree or any part thereof, for the restitution of any property taken in execution of a decree, or for the payment of any money or fulfillment of any condition imposed on any person under an order of the court in suit or any processing consequent thereon, the decree or order may be executed in the manner therein provided for the execution of the decrees, namely, if he has rendered himself personally liable against him to that extent, if he has furnished any property as a security by sale of such property to the extent of the security. थर्ड बात करता है कि इफ द केस फॉल्स both under clause 1 and clause 2, then to the extent is specified in those clauses, and such person shall be deemed to be a party within the meaning of section 47, provided that such notice as the court in each case thinks sufficient has been given to the surety. सेक्शन 145 सिविल प्रोसीजर कोड का एनफोर्समेंट ऑफ लेबिलिटी ऑफ श्योरिटीज़ की बात करता है, यानी कि प्रतिभू के दायित्व के प्रवर्तन की बात करता है। तो जहां किसी व्यक्ति ने किसी डिक्री या उसके किसी भाग के पालन के लिए अथवा डिक्री या निष्पादन में की गई किसी संपत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अथवा किसी वाद में या उसके परिणाम स्वरूप किसी कार्यवाही में न्यायालय के अधीन किसी आदेश के अधीन किसी धन के संदाय के लिए या किसी व्यक्ति पर उसके अधीन अधिरोपित किसी शर्त की पूर्ति के लिए प्रतिभूत या प्रत्याभूत दे दी है, वहाँ वह डिक्री या आदेश डिक्रियों के निष्पादन के लिए इसमें उपबंधित रीत से निष्पादित किया जाएगा। अर्थात यदि उसने अपने को व्यक्तिगत रूप से दायी बनाया है तो उसके उस विस्तार तक, यदि उसने प्रतिभूत के रूप में कोई संपत्ति दी है तो ऐसी संपत्ति ऐसी प्रतिभूत के विस्तार तक उस संपत्ति के विक्रय द्वारा, और यदि मामला ये इन दोनों के अधीन आता है तो उन खंडों के विनिर्दिष्ट विस्तार तक ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 47 के अर्थ में पक्षकार है, परंतु यह तब जबकि ऐसी सूचना जो न्यायालय हर एक मामले में पर्याप्त समझे प्रतिभू को दी जा चुकी है। सेक्शन 146 बात करता है प्रोसेसिंग बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव save as otherwise provided by this code or by any law for the time being in force, where any processing may be taken or application made by or against any person, then the processing may be taken or the application may be made by or against any person claiming under him। सेक्शन 146 बात करता है प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध कार्यवाहियाँ। तो उसके सिवाय जैसा इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित है, तो वहाँ किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है या आवेदन किया जा सकता है, वहाँ उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध वह कार्यवाही की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा। सेक्शन 147 बात करता है कंसेंट और एग्रीमेंट बाय पर्सन्स अंडर डिसेबिलिटी, अर्थात निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार। इन ऑल सूट्स टू विच एनी पर्सन अंडर डिसेबिलिटी is a party, any consent or agreement as to any processing shall, if given or made with the express leave of the court by the next friend or guardian for the suit, have the same force and effect as if such person were under no disability and had given such consent or made such agreement। निर्योग्यता के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहमति या करार। सेक्शन 147 बात करता है कि उन सभी वादों में जिनमें निर्योग्यता के अधीन कोई व्यक्ति पक्षकार है,
किसी भी कार्यवाही के संबंध में कोई भी सहमति या करार यदि वह उसके वादमित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा न्यायालय की अभिव्यक्त इजाज़त से दी जाए तो वह ऐसा ही बल या ऐसा ही प्रभाव रखेगी या रखेगा मानो ऐसा व्यक्ति किसी निरुग्यता के अधीन नहीं था और उसने ऐसी सहमति दी थी या ऐसा करार किया था। सेक्शन 148 बात करता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, अर्थात समय का बढ़ाया जाना। तो वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर द डूइंग ऑफ एनी एक्ट prescribed or allowed by this code, the court may, in its discretion, from time to time, enlarge such period not exceeding 30 days in a total, even though the period originally fixed or granted may have expired. अर्थात 148 बात करता है समय का बढ़ाया जाना। तो जहां न्यायालय ने इसे संहिता द्वारा विहित या अनुज्ञात कोई कार्य करने के लिए कोई अवधि नियत या अनुदत्त की है तो वहां न्यायालय ऐसी अवधि को स्वविवेक अनुसार समय समय पर बढ़ा सकेगा जो कुल मिलाकर 30 दिन से अधिक न होगा, यद्यपि पहले नियत या अनुदत्त अवधि का अवसान हो चुका है। अब हम लोग सेक्शन 148A देख लेते हैं जो बात करता है राइट टू लॉज अ कैविएट, अर्थात कैविएट दाखिल करने का, कैविएट दायर करने का अधिकार। Section 148A, where an application is expected to be made or has been made in a suit or processing instituted or about to be instituted in a court, any person claiming a right to appear before the court on the hearing of such application may lodge a caveat in respect thereof। अर्थात सेक्शन 148A बात करता है कैविएट दायर करने के अधिकार के बारे में। तो सब सेक्शन 1 बात करता है कि जहां किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है तो यहाँ या कोई आवेदन किया गया है वहाँ कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है तो उसके बारे में कैविएट दायर कर सकेगा। Where an application is expected to be made or has been made in a suit or processing instituted or about to be instituted in a court, any person claiming a right to appear before the court on hearing of such application may lodge a caveat in respect thereof। सबसेक्शन 2 बात करता है कि वेयर अ कैविएट हैज बीन लॉज्ड अंडर सबसेक्शन 1 द पर्सन बाय होम द कैविएट हैज बीन लॉज्ड hereinafter referred to as caveator shall serve a notice of the caveat by a registered post, acknowledgement due on person by whom the application has been or is expected to be made अंडर सबसेक्शन 1। अर्थात जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कैविएट दायर किया जाता है तो वहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा कैविएट दायर किया गया है, जिसे इसमें इसके पश्चात कैविएट कर्ता कहा गया है, तो उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा उपधारा 1 के अधीन आवेदन किया गया है या किए जाने की प्रत्याशा है तो कैविएट की सूचना तामील रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वह करेगा। सबसेक्शन 3 बात करता है कि वेयर आफ्टर अ कैविएट हैज बीन लॉज्ड अंडर सबसेक्शन 1 एनी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन एनी सूट और प्रोसेसिंग द कोर्ट शैल सर्व अ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द कैविएट। अर्थात जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कैविएट दायर किए जाने के पश्चात किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन फाइल किया जाता है वहाँ न्यायालय आवेदन की सूचना कैविएट कर्ता को दे देगा। सबसेक्शन 4 बात करता है कि वेयर नोटिस ऑफ एनी कैविएट हैज बीन सर्व ऑन द एप्लीकेंट ही शैल forthwith furnish the caveator at the caveator's expense with a copy of the application made by him and also with the copies of any paper or document which has been or may be filed by him in support of the application।
अर्थात जहां आवेदक पर किसी कैविएट की सूचना की तामील की गई है, वहां वह उसके द्वारा किए गए आवेदन की और उस आवेदन के समर्थन में उसके द्वारा फाइल किए गए या फाइल किए जाने वाले किसी कागज या दस्तावेज की प्रतियां कैविएट कर्ता के खर्चे पर कैविएट कर्ता को तुरंत दे देगा। सबसेक्शन 5 बात करता है कि वेयर कैविएट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर सबसेक्शन 1, सच कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज। ये 90 डेज का पीरियड हम लोगों को याद रखना है कि कैविएट जो है ये 90 डेज तक इन्फोर्सेबल रहता है फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज लॉन्च्ड अनलेस द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 हैज बीन मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सैड पीरियड। अर्थात जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कैविएट दायर किया गया है, वहां ऐसा कैविएट उस तारीख से जिस तारीख को वह दायर किया गया है या 90 दिन के अवसान के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन उक्त अवधि के अवसान के पूर्व न किया गया हो। सेक्शन 149 बात करता है पावर टू मेक अप डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फीस, यानी कि न्यायालय फीस की कमी को पूरा करने की शक्ति। तो वेयर द होल और एनी पार्ट of any fees prescribed by any document by the law for the time being in force relating to court fees has not been paid, the court may, in its discretion at any stage, allow the person by whom such fees is payable to pay the whole or part as the case may be such court fees, and upon such payment the document in respect of which fee is payable shall have the same force and effects as if such fee and had been paid in the first instance। यानी सेक्शन 149 बात करता है कि जहां न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या किसी दस्तावेज के लिए पूरी फीस या उसका कोई भाग संदत्त नहीं किया गया है, तो वहां जिस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस संदेह है देनी है, तो उसे न्यायालय किसी भी प्रकरण में स्वविवेक अनुसार अनुज्ञात कर सकेगा कि वह यथा स्थिति ऐसी पूरी न्यायालय फीस या उसका वह भाग संदत्त करे, और ऐसा समुदाय किए जाने पर उस दस्तावेज का जिसकी बाबत वह फीस संदेह है वही बल और प्रभाव होगा मानो ऐसी फीस पहली बार ही संदत्त कर दी गई। सेक्शन 150 बात करता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की। Same as otherwise provided where the business of any court is transferred to any other court, the court to which the business is so transferred shall have the same power and shall perform the same duties as those respectively conferred and imposed by or under this court upon the court from which the business was so transferred। यानी कि कारोबार का अंतरण सेक्शन 150 बात करता है कि उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित है, जहां किसी न्यायालय का कारोबार किसी अन्य न्यायालय को अंतरित कर दिया गया है, वहां जिस न्यायालय को कारोबार इस प्रकार अंतरित किया गया है उसकी वे ही शक्तियां होंगी और वह उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस न्यायालय को और उस पर इस संहिता द्वारा या उसके अधीन क्रमशः प्रदत्त और अधिरोपित थे, जिससे कारोबार इस प्रकार अंतरित किया गया था। सेक्शन 151 बात करता है कि सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, यानी कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court। Section 151 inherent power of civil court की बात करता है, जिसके तहत एक हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों में इनहेरेंट पावर वेस्टेड रहता है, शामिल रहता है। तो सेक्शन 151 हम लोगों को इनहेरेंट पावर याद रखना है, यह प्री में पूछा जा सकता है।
तो न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति सेक्शन 151। इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 152 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर्स, यानी कि निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन। तो क्लर्कल और अरिथमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट, डिक्री or orders or errors arising therein from any accidental slip or omission may at any time be corrected by the court either of its own motion or on application of the parties। यानी कि 152 बात करता है संशोधन करने की साधारण शक्तियों की। तो न्यायालय किसी भी समय और खर्च संबंधी ऐसी शर्तों पर न्यायालय निर्णयों या डिक्रियों या आदेशों का संशोधन 152 निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोभ से उसमें हुई गलतियां न्यायालय स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी। ये सेक्शन 152 बात करता है। सेक्शन 153 बात करता है कि जनरल पावर टू अमेंड, यानी कि संशोधन करने की साधारण शक्ति। द कोर्ट में एट एनी टाइम एंड ऑन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एज इट मे थिंक फिट amend any defect or error in any processing in a suit, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real questions or issue raised by or defending on such processing। सेक्शन 153 संशोधन करने की साधारण शक्तियों का उल्लेख करता है। तो न्यायालय किसी भी समय और खर्च संबंधी ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जो वह ठीक समझे वाद की किसी भी कार्यवाही में की किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकेगा और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या उस पर अवलंबित वास्तविक प्रश्न या विवाद्य के अवधारण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। सेक्शन 153 ए बात करता है पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड, वेयर एन अपीलेट कोर्ट dismisses an appeal under Rule 11 of Order 41, the power of the court to amend under Section 152 the decree or order appealed against may be exercised by the court which had passed the decree or order in the first instance, notwithstanding that the dismissal of the appeal has the effect of confirming the decree or order as the case may be passed by the court of the first instance। यानी कि 153 ए बात करता है कि जहां अपील संक्षिप्तः खारिज की जाती है तो वहां डिक्री या आदेश का संशोधन करने की शक्ति। तो जहां अपील न्यायालय आदेश 41 के नियम 11 के अधीन कोई अपील खारिज करता है तो वहां धारा 152 के अधीन उस न्यायालय की उस डिक्री या आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है संशोधित करने की शक्ति का प्रयोग उस न्यायालय द्वारा जिसने प्रथम बार डिक्री या आदेश पारित किया है इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील के खारिज किए जाने का प्रभाव प्रथम बार के न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति डिक्री या आदेश की पुष्टि में हुआ था। एंड सेक्शन 153 बी बात करता है प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी डीम्ड टू बी ओपन कोर्ट, यानी कि जो प्लेस ऑफ ट्रायल है वह ओपन कोर्ट समझा जाएगा। विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाएगा। द प्लेस इन विच any civil court is held for the purpose of trying any suit shall be deemed to be an open court, to which the public generally may have access so far as the same can conveniently certain them, provided that the presiding judge may, if things fit, order at any stage of any inquiry into trial of any particular case that the public generally or any particular person shall not have access to,
or be or remain in room or building used by the court। यानी सेक्शन 153 बी बात करता है कि विचारण के स्थान को खुला न्यायालय समझा जाना, तो वहाँ वह स्थान जहाँ किसी वाद के विचारण के प्रयोजन के लिए कोई सिविल न्यायालय लगता है, खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें साधारणतः जनता की वहाँ तक पहुँच होगी जहाँ तक न्यायालय इसमें सुविधा पूर्वक जो है वह ऐसे ट्रायल करा सकें। परंतु यदि पीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह किसी विशिष्ट मामले की जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि साधारणतः जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति की न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कमरे में भवन तक पहुंच नहीं होगी और या वहां वह उसमें नहीं आएगा या वहां नहीं रहेगा। ये सेक्शन 153 भी बात करता है। 154 एंड 155 ये जो है रिपील किए जा चुके हैं। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1952 के तहत सेक्शन 156 1914 में रिपील्ड है। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 157। सेक्शन 157 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ ऑर्डर्स अंडर रिपील्ड इनैक्टमेंट, यानी कि नोटिफिकेशन, पब्लिश्ड, डिक्लेरेशन एंड रूल्स मेड, प्लेसेस अपॉइंटेड एग्रीमेंट, filed scales, prescribed form, framed, appointment made and powers conferred under Act number 8 of 1859 or under any code of civil procedure or any enactment amending the same or under any other enactment thereby repealed shall so far as they are consistent with the code have the same force and effect as if they had been respectively published, made, appointed, filed, prescribed, framed, and conferred under this code and by the authority empowered thereby in such behalf। अर्थात निरसित अधिनियमितों के लिए अधीन आदेशों का चालू रहता। 1859 की अधिनियम 8 या किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता या उसका संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम या आयतक द्वारा निरसित किसी भी अन्य अधिनियमित के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएं, की गई घोषणाएं और बनाए गए नियम, नियत किए गए स्थान, फाइल किए गए करार, विहित मापमान, विरचित प्रारूप की गई नियुक्तियां और प्रदत्त शक्तियां जहां तक वे इस संहिता से संगत हैं वही बल और प्रभाव रखेंगी मानो वे इस संहिता के अधीन और इसके द्वारा इस निमित्त सशक्त प्राधिकारी द्वारा क्रमशः प्रकाशित की गई, बनाए गए या नियत किए गए, फाइल किए गए, विहित किए गए, विरचित किए गए और प्रदत्त किए गए। वहीं सेक्शन 158 बात करता है कि रिफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड इनैक्टमेंट, अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य निरसित अधिनियमितों के लिए उसके प्रति निर्देश। तो इन एवरी इनैक्टमेंट और नोटिफिकेशन passed or issued before the commencement of this code in which reference is made to or to any chapter or section of Act number 8 of 1859 or any code of civil procedure or any act amending the same or any other enactment hereby repealed, and such reference shall so far as the case may be practicable be taken by made to this code or its corresponding part, order, section or rule। सेक्शन 158 बात करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता और अन्य निरसित अधिनियमितों के लिए ऐसे प्रतिनिर्देश तो इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित या निकाली गई ऐसी हर एक अधिनियमित या ऐसी हर एक अधिसूचना जिसमें 1859 के अधिनियम या किसी भी सिविल प्रक्रिया संहिता या उसका संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम या एतद द्वारा निरसित किसी भी अन्य अधिनियमित के प्रति या उसके किसी भी अध्याय या धारा के प्रति निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश को जहां तक हो सके इस संहिता या उसके तथा स्थानीय भाग, आदेश, धारा या नियम के प्रति निर्देश माना जाएगा। तो ये हम लोगों ने सेक्शन 158 सिविल प्रोसीजर कोड तक स्टडी किया। तो बने रहिए,
आगे के लेक्चर सीरीज में हम लोग ऑर्डर्स एंड रूल पढ़ते हैं। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद।